वित्त मामलों के सचिव इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं शक्तिकांत दास की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। On 8th of November, between 8th November and now, more than 80,000 crores additional, 80,000 crores in terms of value. I'm talking about rupees in value. So rupees 1,60,000 crores of 100 rupee notes were in circulation on 8th November. Over the last 5 weeks, rupees 80,000 crores worth of 100 rupee notes have been supplied to the market. Similar is the position with regard to 20 rupee notes, 10 rupee notes and also 50 rupee notes. So considerable amount of lower denomination notes also have been supplied, and the printing of all the lower denomination notes are also continuing in different machines, and they will be supplied. 1,80,000 crores, rupees 1,80,000 crores of 100 rupee notes were in circulation as on 8th of November. 1,60,000 crores. 1.6 lakh crores. 100 rupee notes. And now additionally 80,000 crores of rupees 100 rupee notes have been supplied. Yeah. 2 lakh 40. Yeah, you can total it up. Yeah. One by one. I'll come. You see, number immediately I don't have the number, but I can tell you that roughly whatever has been taken out, I can say that roughly about almost 40, in another week or 10 days, you can say that about almost 45 to 50%, or let's say by the end of the month, about at least 50% of the notes of the kind of notes which became 50% of the notes which were in circulation, which were actually in circulation, at least about 50% of that notes would have been supplied in another 10 to 15 days. I'll come to you. सर, अभी तक जितना भी जो नोट सीज किए गए हैं सर, वो अमाउंट कितना होगा और क्या उनको सर्कुलेशन में लाया गया या फिर अभी नहीं लाया गया? जो भी सीज्ड नोट्स थे अभी नहीं, जो सीज नोट्स से वो तुरंत as soon as possible it is being put back into circulation. ये नहीं कि उसको रखे रहे हैं कोर्ट में प्रूव करना, ये नहीं है इसको, that is being put back into circulation. And दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कितना सीज किया गया इस तरह? नहीं, सीज का फिगर मेरे पास तुरंत अवेलेबल नहीं है। आपने जो बताया कि कितना मतलब आ गया वापस, उसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया में, आरबीआई ने कुछ दे हैव अनाउंस सम फिगर्स आल्सो यस्टरडे. यू सी there are lot of areas where we feel that there could be double counting. So we have identified those areas, and we have requested RBI and the banks to again double check. So a process of correction, checking, counter checking of the figures, what you call sanitization, or not sanitization, but the the checking, the kind of a due diligence is being done to see that there is no double counting of the figures, and that process is on. So once we have some clarity, we will talk about it. No, you have asked by one. One by one. नहीं, उसका जो आप कह रहे हैं कि किस ब्रांच से आया है, उसके बारे में हमने वो एक लोकल लेवल में ईच रीजनल डायरेक्टर जो है आरबीआई के, उनके साथ जो लोकल ऑफिशियल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है सीबीआई की हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हो, लोकल लेवल में उनका एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर्म किया गया है, और वो डाटा माइनिंग करके दे आर एबल टू वी फील दैट दे विल बी इन ए पोजीशन टू नैरो डाउन to the source, कहाँ से ये notes are. I'll come back. Sir, although you're saying that a lot of currency printing is happening, still when you go to a bank branch, they're suffering with cash crunch. Do you think post 31st of December? And sir, are you looking at lifting the restrictions after 30th December, sir? Would you be looking? तो वित्त मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को आप सुन रहे हैं, जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में नए नोटों की बरामदगी हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा वो नहीं बता सकते हैं इस वक्त। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 500 के नए नोटों की छपाई पर फोकस कर रहे हैं, और हमारा जो बड़ा मकसद है वो 2000 के नए नोटों को बड़ी संख्या में मार्केट तक पहुंचाना है। और स्थिति पहले से सुधरी है। आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में उन्होंने कहा कि और हालात बेहतर होंगे, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी कनॉट प्लेस से प्रतीक जुड़ रहे हैं। प्रतीक, आप अपने शो की शुरुआत करें इन तमाम जानकारियों के साथ और साझा भी कर लें ये जानकारी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग इंतजार में, और आज जिस जगह से हम बातचीत शुरू करेंगे तो वहां से सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो नोएडा 51 सेक्टर से आ रही है, जहां पे एक्सिस बैंक को इस समय वहां पे उसके पीछे, बैंक के पीछे कुछ आधार कार्ड मिले हैं और तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है। ये बड़ी खबर नोएडा से आती हुई सेक्टर 51 से। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है? बैंक का देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा खुलासा हम कहेंगे, क्योंकि ये दस्तावेज सिर्फ हम दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ 18 इंडिया में। इस वक्त खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं जिनको कंप्लेंट मिली है, क्योंकि ये जो कागज़ हैं इन बैंकों के ठीक पीछे दिए गए हैं और ये आधार कार्ड की कॉपियाँ हैं, सारे आधार कार्ड की कॉपी हैं और वो फिल करने वाले फॉर्म हैं जिनसे नोटों की अदला बदली हो रही थी। क्योंकि जब 8 नवंबर के बाद ये आदेश निकला था कि नोटबंदी होगी और उसके बाद लोगों के 500 और 1000 के नोटों को बदला जाना था, तो उसके लिए आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जरूरत पड़ी थी। और ये दस्तावेज और आधार कार्ड जो है ये खुद लोगों ने सेल्फ अटैच किए हुए हैं और इनको यहाँ पर फेंका गया है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर कुछ बैंकों के नाम भी हैं इसमें। और सबसे बड़ा अचंभा यह है कि जब हम बैंक से बात करने गए तो बैंक के अधिकारियों ने फिलहाल हमसे अभी तक बात करने की कोशिश नहीं की है और उन्होंने बाकायदा शटर भी अपने डाउन कर दिए। जबकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि काफी सुबह से यहाँ पर काफी जरा ढेर था जिसे रद्दी वाला एक लेके गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक्सिस बैंक की जब एक तरफ रेड चल रही थी एक्सिस बैंक के ऊपर इनकम टैक्स की, और ठीक उसके दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरह के आधार कार्ड की जो फेंकी हुई कॉपियां हैं ये बैंकों के अंदर से आई हैं। आखिर कोई इसका जवाब देने वाला क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी चीज इस पर जांच के सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा मुद्दा है कि आखिर आधार कार्ड की कॉपियां कहां से। और हुजूर बस ये दुकान है अनिल जी की, और अनिल जी हैं कहाँ के? भाई अनिल जी आप कहाँ से हैं? बिहार में। कहाँ? बिहार तो बहुत बड़ा जगह। गया तो मैं बता दूं, गया में भी रेड पड़ रही है अनिल जी। जी हाँ, अब आप शहर का नाम मत लीजिएगा, कहाँ कहाँ ना रेड पड़ रही है। और सब आप तो टैक्स देते हैं ना अनिल जी? टैक्स देते हैं? हाँ अनिल जी टैक्स देते हैं। और जब तक ईमानदार हो, कौन ईमानदार तब तक है जब तक पकड़ा ना जाए ना, तब तक ईमानदार। मोदी जी जो भी किया अच्छा किए, मोदी जी जो किए अच्छा किए। आपका नाम? मोहम्मद मुमताज। वाह मोहम्मद मुमताज साहब, क्या बात है। अब बड़े दिनों बाद मिला कोई आदमी, पहले तो 10 दिन में मिल रहा था। मोदी जी अच्छा किए, मोदी जी अच्छा किए, लेकिन 37 दिनों के बाद कोई शख्स कह रहा अच्छा किए। अच्छा, सबसे अच्छा क्या किए मोदी जी ये बताओ? सबसे अच्छा जो किया, जो काला धन जो छिपा रखा हुआ आप पकड़ा रहे हो। हाँ वही पकड़ा रहा है काला धन। कहाँ के? बिहार में। कहाँ से रहने वाले? हम सब झारखंड से, गिरिडीह से। बस बस बगल के रहने वाले हैं। लेकिन हम बातचीत के सिलसिले को शुरू करें इससे पहले, जी हाँ मैं आपको बता दूं ये वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान भी डील होता है। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी जगह दिल्ली में है? जी हाँ, यहाँ पे IAS की बड़ी तमाम सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े। यहीं से बहुत सारे हुजूर बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ के IAS बन जाते हैं और फिर देश और कैसे चलता है। अनिल जी यहाँ से कितने लोग अमूमन बनते हैं IAS? क्या कोई है आपके पास एस्टिमेट? अच्छा ये बताइए कि कितने लोग मिलने आते हैं आपसे जब वो IAS बन जाते हैं? 2-4 को आ ही जाते हैं। बस आप अपने लगा लीजिएगा हिसाब। मैंने बता दिया ये इतना हिसाब है। लेकिन मैं बताऊं अनिल जी से बातचीत के सिलसिले को शुरू करूं और बहुत सारे लोग जो मेरी तरफ देख रहे हैं मैं उनसे बातचीत के सिलसिले को इस नोटबंदी के मामले में शुरू करूं। उससे पहले बातचीत का ये सिलसिला ये कि आज भी अगर हम बात करें रेट्स की, तो मैंने बताया था अनिल जी जहां के गया के रहने वाले वहां भी रेट पड़ रही है और अभी नोएडा में कनॉट प्लेस में भी लगातार रेट पड़ रही है। इसको पहले देखते हैं कि आखिर काला धन जो है, ये काला कुबेर जो है, कहां से आखिर ये पैसा आ रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर है, पता नहीं कहां से कौन सी चीज उठाई है और कहां से कौन सी गड्डी निकल आए। तो पहले सबसे ये देखते हैं, फिर बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। गया में कारोबारी ने जमा कराए 200 करोड़। नोएडा में एक्सिस बैंक के 20 फर्जी खातों से मिले 60 करोड़। पुणे में बैंक के छापे से बरामद किए गए 10 करोड़ रुपए। मुंबई से 1 करोड़ 35 लाख बरामद, जयपुर से 35 लाख, मेरठ से 67 लाख का काला धन पकड़ा गया।
बैंकों से नोट बदलने की मियाद तो काफी पहले ही खत्म हो गई, लेकिन नोट बदली का काला कारोबार देश के कई हिस्सों में जारी है। मुंबई में शिवसेना नेता और व्यापारी धनंजय गावड़े ब्लैक से व्हाइट का धंधा करते रंगे हाथ पकड़े गए। नालासोपारा में पकड़ी गई ये कार चलती फिरती बैंक बन गई थी, जहां कमीशन पर रुपए बदलने का काम धड़ल्ले से चल रहा था। इसके पास से 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 45 लाख के नए नोट शामिल हैं। गुनेगार लोग जो होते हैं बचने की पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने की भी है, आइदर विद द मीडिएटर्स और विद द बैंकर्स, ज्वेलर्स, रियल एसेट्स, हर जगह पे उन्होंने कोशिश की है। लेकिन काले कारोबारियों को तो जैसे पकड़े जाने का कोई डर ही ना हो। आर्थिक राजधानी मुंबई में ये कोई पहला मामला नहीं है। कल्याण में भी नोटों के बंडल पकड़े गए। इसके अलावा पुणे और कोल्हापुर से भी काले कारनामे सामने आए हैं। महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक भी काली कमाई की जांच कर रही एजेंसियों के रडार पर आ चुका है। 4 दिनों के भीतर ही कोऑपरेटिव बैंक में 5000 करोड़ के पुराने 1000 और 500 के नोट जमा किए गए। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों में 4 दिन जमा करने की मोहलत दी थी। राज्य में कोऑपरेटिव बैंक के करीब 3800 शाखाओं में ये पैसे जमा किए गए। इस बैंक में ज्यादातर खाते किसानों के हैं। ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक स्थानीय नेताओं के नियंत्रण में चलते हैं। नाबार्ड ने इन जमा पैसों की जांच शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने बार बार ये बात बताई है कि आप अगर इनोसेंट है तो इसमें शामिल मत होइए। उसको सपोर्ट करना भी गुनाह है। जिन्होंने सपोर्ट किया होगा वो कभी बच नहीं पाएंगे। बिहार के गया में भी एक व्यापारी ने 50 खातों में करीब 200 करोड़ रुपए डाल दिए। अब आयकर विभाग उसके लेन देन को खंगाल रहा है। वाराणसी में बैंकों में धांधली की खबर के बाद ईडी और आरबीआई की टीम ने डेरा डाल दिया है। अलग अलग बैंकों में कई ब्रांच में कल देर रात तक पड़ताल की गई। पुणे में बैंक के लॉकर से 10 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए। इस मामले में भी बैंक कर्मी संदेह के घेरे में हैं। जानकारों के मुताबिक इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। अगले जन्म में भगवान तुमको मनुष्य नहीं बनाएगा, कहीं जानवर के रूप में पैदा करेगा और तुम भटकते रहोगे किसी सड़कों पर एक टुकड़ी रोटी के लिए। राजधानी दिल्ली में तो ग्रेटर कैलाश और करोल बाग से करोड़ों की रकम पहले ही मिल चुकी है। आज भी एक ज्वेलरी दुकान से 70 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 30 लाख का बड़ा हिस्सा नए नोटों से भरा था। दिल्ली के पास नोएडा में एक्सिस बैंक की शाखा में काले धन का बड़ा खेल सामने आया। आयकर विभाग ने जांच में 20 अलग अलग कंपनियों के खातों में 60 करोड़ का काला धन पकड़ा है। जी हाँ हुजूर, तो यही है स्थिति इस वक्त। पता नहीं कहाँ से काला धन निकल आए। अच्छा, तो है क्या तुम्हारे पास? हमारे पास होता तो हम आपके पास आते भी नहीं सर, बोलने के लिए। अच्छा, तो हाँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हाँ, लाइन लगा करते हैं। हाँ, लेकिन ये बैंक वाली ये जो करोड़ों के हिसाब से रुपए पकड़े जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं ये बताओ पहले। यही तो हमें भी पता करना है कहाँ से आ रहा है। ये छोटी बैंक कभी दे नहीं सकती नोट। हाँ, ये देती होंगी सर, बड़ी बैंक की देती होंगी। क्या नाम हो गया भाई आपका? सर बबलू कुमार नाम है मेरा। बबलू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश। MP मध्य प्रदेश के। वाह बबलू जी, तो बबलू जी से बात करेंगे। लेकिन हर बात होती थी चाय की दुकान पर, चाय की बात। आज अनिल जी चाय की दुकान पर ही बात होगी। और जब चाय की दुकान पर बात होगी तो वो लोग आज बात करेंगे जो माना जाता है सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आज चाय पर चर्चा। अनिल जी, मैंने आज आपसे कहा था कि मैं ओल्ड प्राचीन नगर में मौजूद हूँ। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था ये अनिल जी की चाय की दुकान, और चाय की दुकान पर बातचीत के सिलसिले को बस सिर्फ जोड़ना था। जी, बड़ी देर से खड़े हैं आप बातचीत करने के लिए। फोन कर दिया ना, घर पे फोन कर दिया? फोन कर तो देख रहे हैं ना आपको? देख रहे हैं। तो आप बताइए। आज 15 तारीख है। हाँ, 16 दिन के बाद 2017 में मोदी जी का यही हाल हो जाएगा जो 1000 500 के नोट का। यानी अच्छा हो जाएगा। PM न PM रहेंगे न CM रहेंगे, गुजरात के भी CM नहीं रहेंगे। ऐसा कैसे? ऐसा ही होगा, देख। तो आज हम बात कर रहे हैं गुलाबी गैंग के बारे में। आप बहुत देर से इंतजार करें। क्या नाम है आपका? मेरा मंजूषा। मंजूषा, आप यहाँ पे क्या करते हैं ये पहले बताइए। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ IAS की, हाँ, UPSC की। UPSC। वाह, क्या बात है मंजूषा, बताइए। लॉ भी कर रही हूँ। लॉ भी कर रही हैं। तो अब आप बताइए डीमोनेटाइजेशन पर। जी, मैं सोचती हूँ कि ये जो कॉमन मैन है और मिडिल मैन है ये काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की शादी है। और जो ये जो गुलाबी गैंग है, यानी जो नोट जमाखोर वाले हैं, ये भी है। ये ब्लैक मनी हटाने के लिए अच्छा तरीका है, लेकिन मैं मोदी जी से यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द कॉमन मैन और मिडिल मैन की ये जो परेशानियां है वो हटाए, एड्रेस करें। नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि
जो मेजर प्रॉब्लम है ये वो यही है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग आते हैं, अलबत्ता अनिल जी की चाय पी के और मजा आता है उन्हें, और मैं पढ़ने में मन करता है अनिल जी, है ना। आप बैठे रहिए बस 1 घंटा ऐसे ही, और अनिल जी बीच बीच में हम आपका नाम लेते रहेंगे, गया वाले अनिल जी। तो गया में भी जो लोग देख रहे हैं अभी जान जाएंगे अनिल जी कौन है। हाँ भाई हुजूर, क्या नाम हो गया आपका? शिव कुमार यादव। जी शिव कुमार जी, बताइए, तो बढ़िया चल रहा है ना नोटबंदी? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने अच्छा किया? मोदी जी ने अच्छा किया, लेकिन बीच में जमाखोरों ने गलत किया ना। यही गड़बड़ किया ना। यही गड़बड़ तो किया ये जो मोदी जी गुलाबी ने। गैंग है, जो गुलाबी नोट इकट्ठे कर रहा है, यही गड़बड़ है। यही गड़बड़। लेकिन आप बताओ यार यादव जी, ये आया कहाँ से होगा ये नोट उनके पास? किसके पास? वही जो जमा बड़े बैंक वाले ले गए, दिए हैं बड़े बैंक वाले। ये हाँ? बैंक ही देते हैं, और कौन दे? 2-2 हजार के ये तरस रहे हैं। हाँ। लेकिन वो थैला भर भर के पीछे दरवाजे से निकाल देते हैं। ये बड़े बैंक वाले आप इतनी देर से? हम तो थे यहीं पर। अच्छा, तो 1 मिनट रुकिए, आप वेट करिए, और हम चलते हैं जरा लखनऊ में, और वहाँ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जी मौजूद हैं। पता करें जरा, उत्कर्ष आज आप कहाँ पे, लखनऊ में कहाँ पे मौजूद हैं आज आप? बिल्कुल प्रतीक, देखिए आप एक चाय की दुकान का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो यहाँ गरम गरम मोमोज बन रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हूँ जहाँ देखता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मौसम में ठंडक आई है तो लोगों में गर्मी आई है कि नहीं। आप बताइए साहब, 2000 के नोट और 500 के नोट आपकी जेब में शायद जितने नहीं है उतने दुकानों से और बड़े बड़े मतलब शटर के नीचे से पकड़े जा रहे हैं। सर ये सब तो प्रॉब्लम है ही। पहले सर प्लान तो काफ़ी सही था, पर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बेकार था। जो चीज़ें इन्हें पहले इतने बड़े डिसीजन को लेने से पहले करनी चाहिए थी, उसके बारे में काफ़ी इन्हें सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा हम डिसीजन ले रहे हैं और इससे करेंसी पे क्या क्या असर आएंगे। और सर ठीक है, एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल कि जैसे यहाँ लोगों के पास पैसे निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है लोगों तक नहीं पहुँच पाए लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों तक पहुँच गए? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर गांव हर बैंक में अभी तक पूरी तरीके से पैसे नहीं पहुँच चुके हैं। और यहाँ लखनऊ में तो थोड़ा बहुत अवेलेबल है भी, दिल्ली हो गई और यूपी भी के कई ग्रामीण इलाकों में अभी तक पैसे पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, देखिए प्रॉब्लम यही है प्रतीक कि लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उन शटर के नीचे से पैसे पहुंच जा रहे हैं जहां छापे पड़ रहे हैं, और इतने पैसे निकल रहे हैं जितने तो जनता में भी नहीं पहुंच पाए हैं। यही मैं पूछूंगा आज यही पूछना, ये पैसा जमा कैसे हो गया, ये गुलाबी नोट कैसे और बड़ा हो गया? क्यों हुजूर? तो आपका क्लास कितने बजे है? हमारा क्लास सर 6:30 से। कितनी देर? अभी तो टाइम है ना? यस सर। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूं? कोई बात नहीं सर। हाँ, तो आज मैं ब्रेक ले लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। ब्रेक के बाद फिर मौजूद रहते हैं, यही बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। और आप मुझे मालूम है जरूर बोलना चाहते हैं, मैं बात करूंगा आपसे। हाँ मुझे मालूम है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या हुजूर, चले आइए मेरे पास और बातचीत आज हो रही है गुलाबी गैंग की। आप पूछेंगे ये क्या है? नोट गुलाबी होते हैं, तो जिनको जमा करते हैं उसको गुलाबी गैंग कहते हैं। जी गुलाबी है किनका? अरे इतना ठीक है, बस अब ऐसा मत कहिए जी। रोज जाते हैं, पैसे मिलते नहीं है, 2-3 दिन। भगवान तो ऐसे कहाँ मिलते हैं आसानी से, वो तो बहुत परिश्रम करना। लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, बताओ। भगवान तो आप ही के हैं। अब थोड़ा धीरे से मेरे पास। कितने दिन हो गए परेशानी के? मुझे परेशान हो गए जब से बंद हुए, जब से ही परेशान हो गए। एक बार भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिल रहे हैं, पर वही इतने 2000। हाँ 2000, बस लाइन में लग के जाओ 2000 मिलते हैं, बस 2000 मिलते हैं। जी हाँ सर, मुझे कुछ कहना है। अरे कहना है तो कहिए, आइए मेरे बगल में आइए। कहने का मतलब है कि हमें। नहीं, कहने का मतलब नहीं, पहले नाम बताइए। रतन कुमार मेरा जी रतन जी बताइए। बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि 2000 तो निकल रहे हैं। हाँ। लेकिन इसे बढ़ाया जाए, 24,000 से भी कुछ ज्यादा लिमिट किया जाए। कह रहे हैं थोड़े दिन की परेशानी है। हाँ। अगर मर्ज और मरीज दोनों रह गए या एक रह गया। ये तो सर जो गुलाबी नोट बन रहे हैं आरबीआई में, अभी 1,24,000 करोड़ मतलब कि जो गिरफ्तार हुआ अभी आरबीआई में। अब सर 3-4 दिन पहले इसको ऐसे ही गिरफ्तार करते रहे और साइड करके वो पैसा जब्ती वाला हुआ है, वो पैसा मार्केट में आएगा। सारे दिन बैंक में हम खड़े रहे, सुबह हमसे चेक ले लिया यूनियन बैंक वालों ने, और शाम को 6 बजे पैसा दिया हमारे सारे दिन। अरे आपको तो पैसा मिल भी गया, बहुतों को तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। आपको तो पैसा मिल भी गया जी। जब नोट का इंतजाम नहीं करा तो नोट बंद क्यों किया? पहले से पहले बैंक में पैसा डालना चाहिए था, एटीएम फुल भरने चाहिए थे, डेली गाड़ी आनी चाहिए थी। इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने पैसा बंद क्यों किया? क्या नाम हो गया आपका? रंजीत भारती। रंजीत भारती जी की मुलाकात उनसे होनी चाहिए थी पहले। किनसे? समझ गए इशारा?
उनसे होनी चाहिए थी। जी हम चलेंगे जयपुर, अब जयपुर चल रहे हैं हम थोड़ी देर, फिर आते हैं तुम्हारे पास। चलते हैं जरा जयपुर, वहाँ पे हमारे सहयोगी भवानी मौजूद है, हम भवानी से जानेंगे आखिर ये गुलाबी गैंग वहाँ कितना सक्रिय और जो पकड़े जा रहे हैं वो कितने मोटे हैं। जी प्रतीक, जयपुर के अंदर गुलाबी नगर में गुलाबी गैंग का खौफ है और गुलाबी गैंग से परेशान लोग जो एटीएम में चक्कर लगाकर आ रहे हैं हमारे साथ खड़े हैं, गुलाबी गैंग को खोज रहे हैं क्योंकि एटीएम में उनको पैसा नहीं मिला। काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, ये भाई साहब काफी सारे एटीएम लेकर कार्ड लेकर खड़े हैं, कितने कार्ड है आपके पास? 8 कार्ड है मेरे। क्या नाम है आपका? राजेश सैनी। 8 कार्डों में काफी पैसे लाए होंगे? नहीं सर, एक में भी पैसा नहीं मिला, 6 एटीएम जाके आ गया। 6 एटीएम में जाकर आया? हाँ, पैसा नहीं था? पैसा नहीं है, एसएमएस पे भी नहीं है। अब आप हॉस्पिटल में ये देखो, हॉस्पिटल में क्या करें? 2000 तो कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, नहीं है एटीएम। ये कंडीशन है, एटीएमओ में पैसे नहीं है और अगर पैसे नहीं है तो बैंक में बिल्कुल एक बार मिले, 6-7 बार जा चुका हूँ एटीएम में। एक बार सुबह से नहीं, 35-36 दिनों में। अच्छा, एक बार भी पैसा नहीं मिला मुझे। लेकिन 35-36 दिन तो काफी होते हैं। आप बताएं। तीन दिन हो गए, हमारे घर के बाहर 3 एटीएम लगे हुए हैं, तीनों एटीएम में आज 3-4 दिन से लगातार पैसा ही नहीं है। पैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर तो खूब सारी गैंग पकड़ी जा रही है। आज भी 37 लाख पकड़े जयपुर में। देखिए यही सबसे बड़ा एक रोल हो रहा है कि लोगों के पास तो 2-2 हज़ार की गाड़ियां मिल रही हैं। अब आज मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस जाना था, आप मानिए मैं 9:30 बजे लाइन में एटीएम के लगा, मेरे को 11:30 बजे पैसे निकले, मेरा समय भी बर्बाद हुआ और मेरे को लेट भी पहुंचा। तो आप बताइए कि हम लोग कैसे अपने पैसे खुद के निकालने के लिए मोहताज हो गए हैं। सर मैं आज कम से कम ये प्रतीक, आप बताएं क्या आपको 2000 रुपए आपने? आज मैं कम से कम 5 या 7 एटीएम में गया। जी प्रतीक, देख सकते हैं कि लोग सुबह से एटीएम में चक्कर लगा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गैंग पकड़ी जा रही है जयपुर के अंदर। आज ही 37 लाख मिले। जी भवानी, मैं समझता हूँ। जी मैं जानता हूँ। और लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग बात करने के लिए आगे आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखते हैं अरे बाप रे बाप, काला धन वाले। जी कहिए, मैं जाऊँ मुंबई, पहले बात कर लूँ आपसे, क्या कहना है आपको? मुझसे बात कर लीजिए सर। हाँ क्या बताइए, नाम बताइए। बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा नाम रवि शर्मा है, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, आई एम हम्बल फोल्क। हाँ बस इतना कहना था आपको? नहीं, कहना ये है सर, मैं गवर्नमेंट के इस डिसीजन के फेवर में ही थोड़ा बोलूँगा। थोड़ा डिफिकल्टीज आ रहा है अभी, लेकिन ओवरऑल सब सही फायदा होगा। नहीं सच में बताएं शर्मा जी, आप तो इतने मीठे आदमी हैं, अगर मेरी परेशानी भी होगी तो भी मैं नहीं कह पाऊंगा आपसे। यकीन मानिए इतना मीठा बोलते हैं आप, सच बताइए। सच में बहुत मीठा बोलते हैं आप। मिठास है और इतना सोच के बोलते हैं कि मेरा ब्रेक भी आ जाएगा। कसम से इतना मीठा बोलने वाले हैं सर। आप कड़वा बोलते हैं? हाँ बोलिए। हम कह रहे हैं सर कि मोदी जी जो किए हैं वो अच्छा किए हैं। हाँ, काला धन को बरामद कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया बिहार में? हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट, बिहार सरकार। रोहतास डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये बता दीजिए जो मोदी जी किए हैं वो अच्छा किए हैं। मोदी जी जब हो रहा है नोट के लिए, कुछ दिन चलकर सही हो जाएगा। कुछ दिन चल के, अब ये नहीं मालूम कितने दिन चलना पड़ेगा, ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। उसके बाद हाँ बिल्कुल सही है, पर मैं वाला मुंबई चलता हूँ, मुंबई से मैं लौटूंगा तब बातचीत जोड़ेंगे आप। पर पहले सबसे मुंबई चलते हैं। जी मुंबई चलिए। प्रतीक देखिए, यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे में तकरीबन 12 करोड़ रुपए को इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया है। देश की सबसे बड़ी जो जब्ती हुई है वो पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई है, जहां पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए 2000 के नोट मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह जमाखोरी हो रही है नोटों की। लेकिन दूसरी तरफ आप जनता की मैं देख सकते हो, जो एटीएम के बाहर जो लाइन लगा के लोग खड़े हैं, सिर्फ एक नोट के लिए घंटों लाइन लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जमाखोरी हो रही है महाराष्ट्र में, 12 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं, ये जो बैंक से पैसे निकले 2000 रुपए, कितने नोट निकले? एक ही नोट निकले तो ज्यादा? एक ही नोट निकल रहा है 2000 का खाली। तो सफिशिएंट है आपके लिए? नहीं। तो लेकिन महाराष्ट्र में, पुणे में इतने करोड़ रुपए जब बैंक के अंदर मिल रहे हैं, आईटी सीज कर रही है, उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? कुछ अंदाजा है? कुछ आइडिया नहीं है। तकलीफ होती है इससे थोड़ी सी? इससे जो तकलीफ हो रहे है, हम लोग इधर लाइन में खड़े हैं, वो लोग उनके पास इतना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। कुछ मालूम नहीं अपने को, कहाँ से आता है वो भी मालूम नहीं। तो प्रतीक, आप समझ सकते हैं कि जो आम जनता की एक ही सवाल खड़े कर रही है कि पुणे, कोल्हापुर, थाने में जी, जो मैं समझ सकता हूं। हैं, उनके पास करोड़ों रुपए के आ रहे हैं, उनके एक नोट निकालने के लिए उन्हें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जी, और इधर अनिल जी ने चाय बना ली है और अपने उस कैंटर में भर दी है। चाय वहां से दी जा रही है, 5 रुपए ग्लास है। जी ये चाय दी जा रही है, लेकिन उधर दीपक जी भी कुछ हिसाब किताब में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, जहां पर इस वक्त
रेट डाली जा रही है। तो जी कितनी बरामदगी हुई है गिनेगी। जी प्रतीक जी, देखिए अभी तक लगातार इनकम टैक्स की टीम जो है वो एक्सिस बैंक के अंदर ही है और अभी तक जो ऑफिशियल्स हैं सारे रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। सुबह से लगातार अभी तक कह सकते हैं कि 8 बजे तक का समय लगेगा उन्हें, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल ने ये बताया था कि 8 बजे तक वो रेड यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और अभी तक बैंक की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जबकि हम बैंक के आसपास यहाँ पर घूम रहे थे तो हमें कई सारी ऐसे दस्तावेज यहाँ पर दिखाई दिए जो सड़क पर फेंके हुए हैं। तो इनमें कई सारे बैंकों के अलग अलग नाम है, लेकिन ये किसके दस्तावेज है इसके बारे में भी कोई नहीं जानकारी है। क्योंकि सबसे अहम बात है कि हमने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, ताकि इन जो फेंके गए आधार कार्ड की कॉपियाँ हैं इनका इस्तेमाल गलत तरीके से भी कोई कर सकता है और ये बैंकों की तरफ से फेंकी गई है। और अभी दूसरी तरफ जो टीमें हैं वो बदस्तूर वहीं पर जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई इनकम टैक्स का अधिकारी अगर बाहर निकल कर आता है उससे कोई ऐसा जो दिन भर की रेट के बारे में अगर वो कोई जवाब देते हैं तो उनसे जरूर लिया जाएगा। जी प्रतीक जी। बिल्कुल दीपक, यही बड़ा सवाल है लोगों का। लोग कहते हैं कि साहब मैं तो 2000 रुपए के लिए लाइन में लगा हूं और वहां पर करोड़ों रुपए निकले जा रहे हैं। बहरहाल अनिल जी ने छन्नी लगा दी है चाय पे और इधर चाय सामने आ गई मेरे। हाँ हाँ देखिए कोई बात, ये क्या बोले ना, 15 दिन पैसा नहीं लिया उन्होंने मुझसे। अनिल जी ने? हाँ जी अनिल जी ने। पैसा इन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 दिन का पहले ही ले लेते हैं। नहीं था नहीं ना, था नहीं हमारे पास। इन्होंने नहीं लिया? बिल्कुल नहीं लिया। क्या बात है, आप जैसे लोग अगर अनिल जी के साथ हैं तो फिर क्या बात है। वो कहते हैं जब आएगा तब दे देना, कोई बात जब आएगा तब दे देना। हाँ जी हाँ जी। जी बहरहाल लोग यहाँ पर हैं जो ये बात कहते हैं कि हाँ जो नोटबंदी है उसका जो तरीका है तरीके पे बात सवाल पूछते हैं। जी भाई बताओ क्या नाम है? सर मैं रोहित यादव हूँ। हाँ रोहित जी। तो अमेठी का रहने वाला हूँ, रायबरेली का। ठीक। अरे बाप रे बाप, तो सुनते ही मतलब लगता है हाथ रखूं या हाथ हटा लूं? नहीं सर रखो। नहीं अमेठी तो इतना नाम ही ले लिया तो मैं नहीं सर, केवल कहने के लिए है ना सर। राहुल गांधी ऐसे चिल्लाते रहते हैं और क्या कुछ नहीं किया है अमेठी में कुछ नहीं किया, ऐसे केवल बोलते रहते हैं। अरे कुछ नहीं किया भाई, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ अमेठी के अंदर कुछ किया हो या नहीं किया हमसे मतलब नहीं है। अमेठी का कौन सा गाँव है तुम्हारा? हमारा हिमाचलपुर गाँव पड़ता है। हिमाचलपुर गाँव पड़ता है, ये बात एयरपोर्ट के पास। हाँ ये कह रहे हैं भाई अमेठी में कुछ नहीं हुआ जी। और हाँ बिहार में दारू बंद कर दिया। बिहार में दारू बंद हो गई, इधर अमेठी में कुछ नहीं हुआ। लेकिन नोटबंदी सर बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है। कैसे? बहुत अच्छा है, जिस दिन काला धन है सब बाहर निकल गया। काला धन बाहर आ गया क्या? कुछ रह गया? कुछ रह गया। अभी का जो 70 साल का धन छुपा है वो भी बाहर आएगा। अरे पप्पू का क्या होगा ये तो पूछो ना। पप्पू का क्या होगा? कौन पप्पू? अरे एक ही तो पप्पू है। ना क्या होगा? वक्त एक छोटे ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सिलसिले को बस सिर्फ जोड़ना है। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद। जी तो ऑमलेट बना रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो पेटीएम है और या कैश पैसे ले रहे हैं? कैश पैसे ले रहे हैं। कैश और पेटीएम? पेटीएम नहीं है। क्यों? पेटीएम मालूम नहीं है मेरे को। तो सीख लीजिए। आप तो सब पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हैं, कोई सिखाने नहीं आया? हमारे नहीं आता है जी। हाँ? नहीं आता। आता तो हमें भी नहीं है। हमें नहीं आता। तो सीख लिया भाई। मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ जी। अच्छा वो तुम्हारे बगल वाले पेटीएम? पता नहीं, वो बताएगा। पेटीएम हो रहा है या कैश? पेटीएम क्या है भाई? अरे भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। फिर अरे भाई ज्यादा सवाल पूछते हैं ना, ये ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप ये मेरे पास आइए हुजूर। जी बताइए तो परेशानी क्या है? सबसे ज्यादा ये कि जो काला धन पैसा जो है इकट्ठा जो मिल रहा है, यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। हाँ जी नहीं, कुछ नहीं कह पाएंगे। कुछ कह नहीं पाएंगे? अरे वो तो सबसे आसानी है कहना। क्यों जी? चाय के बारे में तो कह ही सकते हैं ना। बहुत अच्छी है। पहली बार आए हो तो बहुत अच्छी है। पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन हम बता दें आपसे हमारे सहयोगी लखनऊ में उत्कर्ष मौजूद हैं, रुक करना चाहेंगे लखनऊ की तरफ। जी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रतीक, आप पेटीएम के सवाल पूछ रहे हैं। मैं जिस मोमो की दुकान पर हूँ वहाँ जरूर लिखा है कि पेटीएम एक्सेप्ट किया जाता है। इनका अपना फेसबुक पेज भी है। खैर लोगों पर आते हैं। सर ये बताइए, आप लोगों को 2000 और 500 के नए नोट देखने में और लाइन में लगने में तो मुश्किल आ रही है। यहाँ कई ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों से 60-60 लाख रुपए के नए नोट निकल रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या मामला है? मामला ये है कि ये लोग पैसा गवा के रखते हैं लोग।
पैसा दबा के रख रहे हैं, इसलिए आगे जो के लोग सरकार को जो है ये लोग टैक्स नहीं देते, इस वजह से ये लोग पैसा दबा रखने से इन लोग की दिक्कत आ रही है कि हम पब्लिक वालों को ये इतना पैसा इन लोग दबा इन चोरों की वजह से पब्लिक को दिक्कत हो रही है। सर आप बताइए कि आपको नया नोट मिलने में कितनी दिक्कतें आई थी? अब नया नोट क्या, जो लाइन में लगना पड़ रहा है और 2000 रुपए ये दे रहे हैं, और जो लाइन में लगता नहीं दिखा उसके घर पे लाखों रुपए है, वो भी नया नोट है, ये एक मामला कहाँ से हो गया? अब ये तो मशीनरी की गड़बड़ी है और ये भारत में बहुत दिन से चली आ रही है। अब इसको कब खत्म होगा ये तो जब मशीनरी ठीक की जाए पूरी तरीके से सब हो पाएगा। तो देखिए प्रतीक, मशीनरी की गड़बड़ी है, मशीनरी को ठीक होना पड़ेगा, लेकिन लोगों को ये दिक्कत जरूर है कि जिनके पास 60-60 लाख रुपए पहुंच गए वो लोगों की जेब में आ जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल उत्कर्ष, और देख रहा हूँ मैं लखनऊ में मोमो खा रहे हैं, बदल रही है लखनऊ भी। जी आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन इधर बात सिर्फ चाय पर है, और जब चाय पर चर्चा हो तो बदलते हिंदुस्तान की चर्चा। आप लोग तो सब IAS की तैयारी, यूपीएससी की, है जी, यूपीएससी की प्रिपरेशन, क्या लगता है आपको फैसला? टू अर्ली टू से और still have to wait? डिमोनेटाइजेशन है, स्टिल हैव टू वेट और सी, और इतना वेट तो करना ही पड़ेगा, टाइम लगता है चेंजेस में तो बेहतर है। हाँ बेहतर है। व्हाट्स योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है? Well, demonetization, up to some extent it's good, but government has taken some positive initiative regarding this. So, but these people around us, they also have to cooperate, and until and unless they'll not cooperate, this won't work. जी आसपास का सहयोग नहीं मिला तो मुश्किल में पड़ जाएगा। जी हुजूर, आपका नाम? गणेश नाम है मेरा। जी गणेश जी, आपको क्या लगता है डिमोनेटाइजेशन पे? आप यूपीएससी के लिए हैं? यस, ये सबसे अच्छा डिसीजन है मैं बोलूंगा। 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। आपको लगता है ओवरऑल, मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल देश के कर्ता धर्ता होंगे, IAS होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ भ्रष्टाचार पे कमी, और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो खाई है अमीर और गरीब की, जो बढ़ती जाती है, हमेशा चर्चा होती है, वो कम होगी, वो नैरो होगी? 2 सवाल है मेरे। एक तो भ्रष्टाचार तो जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उससे मुझे ये लगता है कि इसके अभी इम्प्लीकेशन थोड़ी दिन वेट करना चाहिए। हम सडन ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते। और दूसरा खाई तो उस पे यानी अब जब तक ये डिसीजन नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिजल्ट आने नहीं शुरू होते, कहा ना मुश्किल है। जी आपको क्या लगता है? डिमोनेटाइजेशन, हाँ बेहतर है, बेहतर है। ब्रेक पे जाऊँ से पहले मैं जानना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड स्टेप। द रिजल्ट विल कम। रिजल्ट showing so far, but it's not foolproof as of yet. All black money hasn't come out as of now. It's coming. It's coming. तो आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात होगी और किसी मुद्दे के साथ, मतलब बात तो नोटबंदी पे है, लेकिन हाँ उसके तमाम बिंदु, तमाम पहलू, उस पर बात होगी। लेकिन आज इशारा अनुराग ने कर दिया तो बस चलते हैं, बस आज अभी बस इतना ही।